Hello students, this is an introduction video of chapter 2nd Cubes and Cube Roots. In this lecture, we discuss definitions and properties of cubes. Let us start. What is cube? The cube of a number, the cube of a number is multiplied, the cube of a number is multiplied by itself, by itself, by itself by itself three times, three times, and is read as read as number raised raised to the power raised to the power 3 की क्यूब. अ क्यूब ऑफ ए नंबर, क्यूब क्या होता है? एक नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ. जब एक नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं कितने बार? थ्री टाइम्स, मतलब तीन बार जब हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जब क्या मिलती है? पावर 3. जैसे एग्जांपल n मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई n. According to definition, when we multiply the three numbers, when we multiply the numbers three times, हमने कोई नंबर को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, then we get the number with power 3. This is cube. A cube is a three-dimensional shape. A cube is made up of square like this. A cube is made up of square. It is three-dimensional shape. The other examples like a multiply a multiply a equal to a की power 3, like 4 multiply 4 multiply 4 4 raised to power 3. This. The next, what is perfect cube? A number n is a perfect cube if there is an integer m such that n equal to m multiply m multiply m. Perfect क्यूब कि एक नंबर कब परफेक्ट क्यूब होगा? अ नंबर n is a perfect cube a number n is a perfect cube if there is an integer if there is an integer m such that n equal m multiply m multiply m. कि एक नंबर परफेक्ट क्यूब कब होगा? अ नंबर n इज परफेक्ट क्यूब इफ देयर इज एन इंटीजर m. जो इंटीजर m होगा वो किस फॉर्म में होगा? n इक्वल टू m मल्टीप्लाई m. कि हमारे पास क्या बनेंगे? पेयर्स बनेंगे. द नेक्स्ट, हाउ
अ नंबर सेड टू बी परफेक्ट क्यूब, कि हम एक नंबर को कैसे कह सकते हैं कि वो परफेक्ट, कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 216, हमें बताना है कि क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 216। फर्स्टली divide by 2, then we get 2 divided by 216, then we get 108, then again 5 and 4, then again 2 27, divide 2 divided by 54, then divide by 3 3 9, then again 3 multiply 3 3 3 multiply 3 9, then 3 divided by 3 1, then the prime factorization of 216 equal to 2 multiply 2 multiply 2, 3 multiply 3 multiply 3, then make the pairs। अब हमें पेयर्स 3 3 के बनाने हैं। कितने के? 3 3 के। जब हमने स्केयर की थी उसमें 2 2 के बनाने थे, अब यहाँ है क्यूब, तो क्यूब में क्या करना है? 3 के पेयर बनाने हैं। 216 इक्वल 2, then 3 which is equal to 6, means 216 is a cube of 6. Then we can write 216 is the cube of 6. 6 multiply 6 multiply 6, which is equal to 216. Then next 1323 is a perfect cube। हमें चेक करना है कि जो 1323 है क्या वो एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 1 3 2 3। Firstly we divide by 3, when 3 divide by 3 1 2 3, then we get 4 4 1, then again we divide by 3, we get 1 4 7, then again divide by 3 3 4, 3 4 ja 12, then 2 3 9 ja 3 multiply by 9 27, then again divide by 7 7 multiply 7 49, then we get 7 7 divided by 49 7, then again divide by 7, then we get 1। The prime factors of 1323 is 1323 equal to 3 multiply then make the pairs, but 7 there is no pairs, then which means 1 3 2 3 is not perfect क्यूब, क्योंकि जब हम 7 की ग्रुपिंग कर रहे हैं वो एक उसमें कम है, जिसके कारण पेयर्स नहीं बनेंगे। अब पेयर्स नहीं बनेंगे तो वो क्या होगा? 1323 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब ऑफ ए नंबर्स, कि हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है किसकी? क्यूब ऑफ ए नंबर्स की।
And property first, cube of an even number is always even, where the cube of an odd number is always odd. कि जब हम क्यूब एक इवन नंबर की लेंगे तो हमारे पास आंसर भी क्या आएगा, इवन में आएगा। जब हम क्यूब किसकी लेंगे, ओड की लेंगे, तो हमारे पास जो क्यूब आएगी वो भी ओड में होगी। जैसे क्यूब ऑफ टू, टू की पावर थ्री, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू विच इज इक्वल टू, टू इज इवन, इवन नंबर की हमने क्या ली है, क्यूब ली है। देन टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, टू मल्टीप्लाई टू फोर, फोर मल्टीप्लाई टू एट, then 8 is even number, then cube of even number is always even। then second, cube of 3, 3 multiply 3 multiply 3 which is equal to 3 multiply 3 9, 9 multiply by 3 27, and 27 is a odd number। कि जब हमने 3 एक odd number है, उस odd number की क्यूब की, तो हमारे पास जो आंसर आया वो भी क्या आया, एक odd number आया। whereas the cube of an odd number is always odd। the next, the cube of any multiple of 8, द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ टू, कि जो क्यूब होगा मल्टीपल ऑफ टू का, जो भी मल्टीपल्स होंगे, टू के मल्टीपल्स होंगे, जब हम उनका क्यूब करेंगे तो वो क्या होंगे, हमेशा डिविजिबल बाय 8 होंगे। कि जब भी हम जो भी क्यूब किसका करेंगे, मल्टीपल ऑफ टू, जब भी हम मल्टीपल्स टू के जो मल्टीपल्स हैं उनका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो डिविजिबल बाय किससे होगा, 8 से। कि जैसे हमने मल्टीपल ऑफ, सबसे पहले मल्टीपल ऑफ टू लिया, मल्टीपल ऑफ टू इज 12, 12 टू मल्टीप्लाई 6 12, देन इसकी हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, जो कि किसके इक्वल होती है, क्यूब ऑफ 12 इज 1728। अब 1728 है, वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। देन चेक, 1728 डिविजिबल बाय 8। प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो भी क्यूब करने पे आंसर आएगा वो 8 से डिविजिबल होगा। 8, 16, 1 एंड 8, 1, 4, 8 multiply 6, 48, which means 80 divisible by 1728. The cube of any multiple of 2 is divisible by 8. Then example second, 4 power 3, 4 multiply 4 multiply 4, which is equal to 4 multiply 4 16, 16 multiply by 4 64, and divide by 8, 8 multiply by 8 64, which means it is divisible by also 8. Then property number third, the cube of any multiple of 3 is divisible by 27। कि जब भी हम जो भी मल्टीपल होगा 3 का, जब हम मल्टीपल लेंगे और उसकी क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो डिविजिबल बाय किससे होगा, 27 से। जैसे हमने मल्टीपल ऑफ 3 लिया 9, 9 क्या है, 3 का मल्टीपल है, उसकी क्या करी, क्यूब कर दी, जो कि इसके इक्वल है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, which is equal to 729, and then divide by 27, 27 multiply 27 729, then 27 मल्टीप्लाई 27 क्या होता है, 729 होता है। इसका मतलब क्या है कि जो 729 है वो किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 27 से। देन विच इज डिविजिबल बाय 27, जिसका मतलब क्या है, जो 729 और 27 से भी डिविजिबल है। अब हम क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, कि जब भी हम क्यूब करेंगे नेगेटिव नंबर्स की तो हमारे पास आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कैसे, कि जैसे एग्जांपल लिया क्यूब ऑफ -2, कि
हमारे पास नेगेटिव कि हमने नेगेटिव ले लिया किसके आगे, 2 के आगे, -2 लिया। जब हमने उसकी क्यूब की देन वी रिटर्न एज -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। देन वी नो सम प्रॉपर्टीज, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, वन टू साइन ऑफ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे जब हमारे पास क्या आएगा प्लस, एंड प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस। अब हम देखेंगे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो क्या होगा प्लस, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, किसका, पॉजिटिव 4। बट देन नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय -2 then we get 4 multiplied by 2 8, then by property one is plus and second is negative, then we get negative, then this is 8, then the cube of negative number is always negative. Then property fifth, the cube of positive number is always positive, कि जब हम एक पॉजिटिव नंबर लेंगे तो उसकी जब क्यूब करेंगे वो क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। जैसे 4 raised to power 3 कि हमने जब 4 क्या एक पॉजिटिव है उसकी हमने क्यूब की 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64, तो हमारा आंसर भी क्या आया है, पॉजिटिव आया है। देन द क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। देन प्रॉपर्टी नंबर 6, द क्यूब ऑफ रैशनल नंबर इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय द क्यूब ऑफ इट्स डिनोमिनेटर, कि जब हम रैशनल नंबर की क्यूब करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, क्यूब ऑफ न्यूमिनेटर की एंड क्यूब ऑफ डिनोमिनेटर। मीन्स रैशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q and where q is not equal to 0। then take an example 3/5, 3/5 is रैशनल नंबर, इसकी जब हम क्यूब करेंगे मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 3 की क्यूब एंड 5 की क्यूब, देन 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27, एंड 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 which is equal to 1 to 5। means the cube of rational number is equal to the cube of numerator and cube of denominator, cube of numerator and cube of numerator।